गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ अभिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल, योर मैथमेटिक्स टीचर. And in this video just we are going to discuss the differentiation chapter, a new concept and very important concept from the differentiation chapter class 12. Okay, so from this topic, that means which we are going to discuss in this lecture, it is very important part, and at least one question used to come every year from this topic. Okay, very important part it is. Just try to view the lectures and try to actually enjoy the lectures as well, and just you have to gather the knowledge, perceive the knowledge from my lectures, and just you should have the idea how to solve this type of questions. Okay, so at least one question will come. Okay, just you can take my words as seriously, and from this part and from this lecture all the important questions will be discussed. Okay, and I think from my side and from my actually the solvings, one question will be common. Okay, so from this lecture, implicit function, this chapter is implicit function. This is the topic actually. Chapter is differentiation, and from this differentiation chapter, implicit function as part it is. Okay, so implicit functions. So in the last lecture that I had given the idea, and I think I had discussed about the implicit functions. What type of functions are called the implicit functions? Okay, so implicit equations, and how can you differentiate the implicit functions, that will be discussed in this lecture. Okay, so इम्प्लिसिट फंक्शन, मैंने बोला था कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है नहीं? इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है, उस इक्वेशन में वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ ऐसे ही अटैच्ड होगा जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं. यू कांट सेपरेट द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स. ओके, whatever the variables are in the question, just that will depend on the question. No, so just x or y, if you have this x and y variables in one particular equation, then this x and y variable can't be separated by using any process. You can't separate them. Okay, so this type of equations are called the implicit equations. And how can you differentiate this particular type of equations? That will be discussed in the lecture, and very important lecture it is. Just you should view the lectures fully. Okay, then I think no problems will be arised from this part. Okay, and very conceptual part also, very conceptual questions actually are going to be discussed from this part. So stay connected with me. Okay, so just at first you have to write the definition. You have to write the definition here. Implicit function, just heading though, implicit functions. Implicit function. If a function, if a function can be defined by f of x comma y, f of x comma y, that means a particular function f of x comma y will be there, and there I think two variables x and y, two variables will be espoused to each other, and that cannot be separated by using any kind of process, whatever you know, okay, as the separation method. So you can't separate this x and y variables as well. So if a function can be defined by f of xy and f of xy equals to 0, then this equation is called implicit equation.
Okay, implicit equation, and this function is what? This part is implicit function. Okay, so if you have this equal 0, then it will be converted to the implicit equation. Okay, that is the variables can't be separated the variable can't be separated in that type of equation. Okay, just you can write this part. That means the variable can't be separated in that type of equation. If you take an example here, xy square plus yx square plus y cube equals to 0, that you can see here x and y variables are espoused to each other in such a manner, in such a way that these variables cannot be separated at any cost by using any process that you can use, no problem. But this x and y variables can't be separated, can't be split individually. Okay, so this type of equations are called the implicit equation. Okay, now if you want to find the differentiation, that means you will be given the question like find dy by dx, find dy by dx of this particular equation. Just if you take this example, okay, now find dy by dx, find dy by dx, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन आपको. ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली बोथ साइड मुझे ddx यूज करना है. एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0. डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0. सो ddx ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ddx of yx square, ddx of y cube equals to 0, just like that. Okay? तो यहां पर ddx of this, ddx of this, ddx of this, हर जगह देखो यहां पर ddx of xy square, that means ub, ddx of yx square, that means u into v, ddx of y cube, normal differentiation. That means after taking this differentiation on both sides, you will get different dy by dx in every place. And after that, all the dy by dx term should be collected together, and after that dy by dx value should be found. Okay, we will discuss this type of questions. Okay, so this is the example. Just you can take an example here. Just using this example, that means you can get the idea how to use the differentiation on both sides and how to find the dy by dx value. Okay, now at first just write the question. Just regarding this concept, we are going to solve different types of questions which are very, very important for the board level exam as well as for entrance level. Okay, so just write the first question. Just write the first question. Ligo. Question number 1. Find dy by dx of ax square plus 2ax square plus 2hxy plus by square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. It is your implicit equation that you can see the x and y variables can't be splitted here. Can't be splitted. That means in the left hand side x expression and in the right hand side y expression. You cannot write this equation in this form. Okay, so if you take, now the question is, if you have to find dy by dx. That means for getting this dy by dx, you should have actually taken the ddx on both sides. Okay, so that means ax square plus 2hxy plus by square
plus 2gx 2fy plus c equals to 0. Okay, now you can split ddx of ax square first term, ddx of 2hxy second term, ddx of by square third term, ddx of 2gx, ddx of 2fy plus ddx of c equals to 0. Okay, हाँ, here x square ये a क्या होगा, बाहर आ जाएगा. That means a ddx of x square, ये 2h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 2h ddx of xy, ये b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा. ddx of y square, ये 2g कांस्टेंट है, 2g बाहर आ जाएगा. ddx of x, ये 2f कांस्टेंट है, 2f बाहर आ जाएगा. ddx of y और ddx of c तो 0 ही है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है. ठीक है. ddx of x स्क्वायर क्या होता है, twice x. ddx of x स्क्वायर क्या होता है, twice x. 2h यहाँ पर तो u और b हो जाएगा. x इंटू ddx of y प्लस y इंटू ddx of x, u इंटू b, u ddx of b प्लस b ddx of u. ओके, प्लस b ddx of y स्क्वायर. अच्छा मुझे ये बोलो, ddx of x स्क्वायर क्या होता है, twice x होता है. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n फॉर्मूला. ठीक है, तो x टू द पावर n फॉर्मूला का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर x स्क्वायर अगर हो, n की जगह अगर स्क्वायर हो, तो आपको भी n की जगह स्क्वायर बिठाना है. दैट मींस 2 बिठाना है. दैट मींस twice x होगा ना. तो अभी देखो ddx of y स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2y तो आपको लिखना है. ठीक है, कितना एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, एक है स्क्वायर का, फिर है y का एक्सप्रेशन. 2 एक्सप्रेशन है. तो पहले स्क्वायर के लिए तो 2y लिख लिया, फिर y का डिफरेंशिएशन तो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर ddx of y. सो दैट मीन्स 2y ddx of y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy by dx ऐसे लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये होगा, ये 2y dy by dx हो गया. फिर उसके बाद जाओ, ddx of x कितना होता है, 1 होता है. ddx of x, x का पावर 1 है ना, तो फॉर्मूला अगर यूज करें पावर का फॉर्मूला, तो nx टू द पावर n माइनस 1. दैट मींस 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, तो x टू द पावर 0 1 होता है ना. सो दैट मींस dy by dx प्लस 2g प्लस 2f, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू 0. है कि नहीं. बस अब 2ax प्लस 2h ब्रैकेट में x इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, dy by dx. है कि नहीं, प्लस y इंटू ddx of x क्या होता है, 1 ब्रैकेट क्लोज करो, फिर 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx इक्वल्स टू 0. है कि नहीं. अब जितना सारा dy by dx का यहाँ पर टर्म दिखाई दे रहा है, सबको एक साथ लिखो, और dy by dx जिसमें नहीं है उसको राइट साइड में लेके चले जाओ. ओके, लिखो dy by dx रिलेटेड कौन सा टर्म है, 2hx dy by dx प्लस 2by dy by dx प्लस 2f dy by dx. तो ये सब टर्म्स में dy by dx इन्वॉल्व है. अब जिसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको देखे जाओ. जैसे ये 2ax प्लस का है, वो माइनस 2ax उधर जाएगा, फिर 2hy माइनस 2hy उधर जाएगा, फिर माइनस 2g उधर जाएगा. इधर अगर मैं dy by dx कॉमन लूं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, hx प्लस by प्लस f. उधर क्या होगा, इधर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2, क्या होगा, x प्लस hy प्लस g. इधर 2 कैंसिल. दैट मीन्स dy by dx इक्वल्स टू माइनस x प्लस hy प्लस g होल बाय hx प्लस by प्लस f. ये होता है dy by dx का आंसर. dy by dx का आंसर. ओके, ठीक है. दैट मीन्स
यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये होता है आपका dy बाई डी एक्स का आंसर। ओके, ऐसे ही आप लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाना है। हियर यू कैन सी इट इज द dy बाई डी एक्स वैल्यू। ओके, यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट इक्वेशन का ऐसे ही आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xy, इसका भी निकालना है। तो गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xy, so that means ddx of x क्यूब प्लस वाई क्यूब और इधर ddx of 3xy है कि नहीं। देखो बहुत सारे ddx ले लिया हम लोगों ने। अब ddx of x क्यूब एक पार्ट, ddx of y क्यूब दूसरा पार्ट होता है, और ddx of ये 3 तो कांस्टेंट है, अंदर रख के क्या करें उसको, 3 को बाहर लेके चले आओ, ये ddx of x y हो गया। अब हर जगह देखो पावर का फॉर्मूला, यहां पर भी पावर का, यहां पर भी पावर का। अच्छा, तो ddx of x क्यूब, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1, n मीन्स यहाँ पर क्या है 3 माइनस 1। यहां पर भी n x टू दी पावर, यहाँ पर x की जगह y है, तो x टू दी पावर n माइनस 1, बट यहाँ पर y है ना, तो दैट मीन्स ddx ऑफ y अलग से निकालना है आपको, और इधर u भी y, देखो ddx ऑफ y प्लस y ddx ऑफ x हो गया। ठीक है, नाउ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 3x इंटू dy बाई dx प्लस y। अब dy बाई dx रिलेटेड जितना टर्म्स हैं, dy बाई dx 3y स्क्वायर माइनस 3x और इधर 3y माइनस 3x स्क्वायर, 3y माइनस 3x स्क्वायर, so that means dy by dx equals to 3y minus 3x square by 3y square minus 3x। ओके, हो गया। तो ये हो गया dy by dx का आंसर मिल गया आपको, है कि नहीं। हर जगह देखो u इंटू भी और स्क्वायर का, दैट मीन्स पावर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, और तो कुछ नहीं हुआ है पर, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन जाएंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, लिखो, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy by dx of log x square plus y square, log x square plus y square equals to 2 tan inverse y by x, 2 tan inverse y by x, है कि नहीं। देखो आपको dy by dx निकालना है, इक्वेशन तो गिवन है, तो आपको गिवन log x square plus y square 2 tan inverse y by x। ठीक है, हो गया। अब जो है आपको देखो बोथ साइड तो ddx लेंगे हम लोग, ddx ऑफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इधर होगा, और इधर ddx ऑफ ये 2 tan इनवर्स y by x, ये तो लिखेंगे। ठीक है, वो साइड हम लोगों ने ddx ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में कितना एक्सप्रेशन है, पहले log का एक्सप्रेशन है, फिर ये है एक एक्सप्रेशन। ठीक है,
अब लॉग एक्सप्रेशन रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनता है, दैट मींस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, दैट मींस लॉग के बाद जो भी रहेगा आंसर क्या आएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉग ये, तो दैट मींस 1/x² प्लस y² गया लॉग का, फिर बाकी क्या है डी डी एक्स ऑफ x² प्लस y²। ये सेकंड एक्सप्रेशन का भी दिखाना है आपको। 2 तो कांस्टेंट बाहर लेके चले आओ 2। अच्छा, यहां पर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x², ये होता है फॉर्मूला। अब x के जगह जो भी रहेगा आपको यहां पर भी x की जगह वही लिखना है, तो यहां पर 1/1 प्लस x², दैट मींस दिस वन। तो कितना एक्सप्रेशन है यहाँ पर, एक है tan इनवर्स का और दूसरा होता है y/x का। सो दैट मींस फर्स्ट एक्सप्रेशन तो गया और सेकंड एक्सप्रेशन y/x का आपको डिफरेंशिएशन दिखाना है कि नहीं, है कि नहीं। तो 1/x² प्लस y² डी डी एक्स ऑफ x² मीन्स ट्वाइस x, डी डी एक्स ऑफ y² मीन्स ट्वाइस y। बट जब आप y वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तब आपको dy/dx हर जगह लिखना है, याद रखिएगा आप ये। तो दैट मीन्स 2, इधर भी क्या होगा एलसीएम करेंगे तो x² और इधर x² प्लस y², ओके। और इधर तो u/v होना चाहिए, x² x इंटू डी डी एक्स ऑफ y माइनस y इंटू डी डी एक्स ऑफ x, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 1/x² प्लस y² ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y dy/dx, यहाँ पर 2x² प्लस y², उधर x इंटू dy/dx माइनस y बाई x², इधर x² देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपको डिफरेंशिएशन जब निकालना है तब देखना है कि कितना एक्सप्रेशन उसमें होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1/x² प्लस y², एक 2 कॉमन आता है, शायद 2 कॉमन ले लो, उधर x प्लस y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2/x² प्लस y² x dy/dx माइनस y, 2 कैंसल, दिस कैंसल। तो बस dy/dx रिलेटेड जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और dy/dx नहीं है जिस टर्म्स में वो सब राइट साइड में लिखना है। दैट मींस y dy/dx माइनस x इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस y माइनस x। सो dy/dx अगर मैं कॉमन लूं y माइनस x इक्वल्स टू, माइनस अगर कॉमन ले x प्लस y। सो dy/dx इक्वल्स टू, माइनस अगर कॉमन ले x प्लस y बाई, यहां पर अगर माइनस कॉमन ले x माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल, dy/dx इक्वल्स टू x प्लस y बाई x माइनस y। देखो ये होता है dy/dx का आंसर। ये प्रूफ भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, प्रूफ दैट dy/dx इक्वल्स टू x प्लस y बाई x माइनस y, प्रूफ भी आ सकता है। तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन जब आप लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन जो भी एक्सप्रेशन का आपको करना है उस एक्सप्रेशन में आप लोगों को देखना है, उस एक्सप्रेशन में आप लोगों को देखना है कि कितना यहां पर एक्सप्रेशन है। जितना एक्सप्रेशन होगा उस डिफरेंशिएशन भी उतना ही आपको लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फर्स्ट लेक्चर जो है आप लोग देखना, वहां से जो है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का, ठीक है। तो वहां से जो है आप लोगों को मिल जाएगा ये सब, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जस्ट 100 स्टार देकर रखो उसको, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अभी जो करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मतलब इतना हमने कितना टाइम आया है कोई गारंटी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो
10-12 साल तो आई ही है ये क्वेश्चन। ओके, देखो, इफ x रूट 1 प्लस वाई, फिर प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 and x not equals to 0, then prove that dy by dx equals to 1 by 1 plus x whole square, 1 by 1 plus x whole square। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है, प्रिपेयर रहना उसके लिए, क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है मैं भी। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर हियर x रूट 1 प्लस वाई, y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां पर तो बोथ साइड डी डी एक्स ले लेना है, और क्या है, डी डी एक्स ले लो। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं यहां पर पहले डी डी एक्स नहीं लूंगा। क्यों, वाई? बिकॉज द रूट टर्म इज देयर। सो रूट लेके कैलकुलेशन करना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो यहां पर ये रूट को भगाने का रास्ता भी है तुम्हारे पास। अगर इफ यू हैव द अनदर पाथ और अनदर रूट है to exclude the root over terms from the given expressions, then why shouldn't I take this path here? Okay, so if you have this root over expression in one particular question, then always try to exclude this root from the given expression as well. Okay, if you can, if you can't exclude this root over term, then what to do? You have to proceed just like the question here. Okay, so here we have the root, we have the path to exclude this root over term. Now you can take whole square on both sides. A minus sign is also there. So x square 1 plus y, or either y square 1 plus x, that you can see root is excluded here. So x square plus x square y, और सब एक साइड में लेके आ जाओ, y square minus y square x equals to 0. So that means x square minus y square एक होगा, और इधर प्लस x square y minus y square x, ये दूसरा, x minus y x plus y, और इधर एक्स वाई कॉमन लेने से x माइनस वाई, दोनों टर्म से देखो x माइनस वाई कॉमन आता है कि नहीं? तो इधर रहता है देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? ठीक है, ये जो है मैंने बोला था कि क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस होगा। ठीक है, ये x नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये x नॉट इक्वल्स टू y है, x नॉट इक्वल्स टू y है, एक करेक्शन मिला आपको। ठीक है, ये नेट से कलेक्ट किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है बहुत। ठीक है, तो यहां पर देखो, इफ x नॉट इक्वल्स टू y है तो x माइनस वाई नेवर इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। सो दैट मींस दो फैक्टर मिला है ना, तो ये फैक्टर जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सो ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्वियसली ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां पर अगर मैं यहां पर देखो y को मोल लू 1 प्लस एक्स, और इस x को माइनस एक्स करके उधर लेके चले जाऊं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन लेंगे डी डी एक्स ऑफ y, और ये डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर तो होगा u बाई v। माइनस को बाहर लेके आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर देखो v, दैट मीन्स दिस स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस रहेगा सामने, और इधर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इधर 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, है कि नहीं? देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो 1 तो लिखते हैं जरूरत नहीं है। एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 0, डी डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1, तो यहाँ पर माइनस एक्स ही रहेगा।
है कि नहीं? तो क्या आ रहा है, देखो अभी dy बाई सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहां पर माइनस तो है ही, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स क्या आया, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पर माइनस है, क्वेश्चन करेक्शन करो, dy बाई डी एक्स क्या प्रूफ आता है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया? ठीक है, नाउ उसके बाद और एक क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, लिखो इफ, हो गया? हाँ, इस क्वेश्चन को अगर तुम नॉर्मली सॉल्व करने के लिए जाओगे, ये प्रूफ नहीं आएगा, है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन का क्वेश्चन है, x नॉट इक्वल्स टू y गिवन है, तो दैट मीन्स इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, है? तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है, विदाउट दिस प्रोसेस यू कांट गेट द प्रूफ हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ cos इनवर्स if cos inverse x square plus y square by x square minus y square, if cos inverse x square plus x square minus y square, x square minus y square by x square plus y square equals to tan inverse A, then prove that dy by dx equals to y by x, dy by dx equals to y by x, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन है आपका। ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स ए तो है ही। तो एक काम यहां पर कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, कॉस इनवर्स को उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाता है ना, होता है कि नहीं? तो उसके बाद अगर बोथ साइड ddx यूज करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बोलो मुझे ये क्या कांस्टेंट है ना, यहां पर तो वेरिएबल तो है ही नहीं कुछ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा ना। और ये तो u बाई भी है, आपको u बाई भी फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो भी ये है भी ddx ऑफ u, ये है u माइनस u ddx ऑफ v, just like that equals to 0. So that means x square plus y square, ddx of x square means twice x minus ddx of y square means twice y, तो हो गई twice y, तो हो गई। फिर उसके बाद y का मैंने बोला था dy by dx आपको लिखना ही है कि नहीं। जैसे सपोज यहाँ पर देखो ddx ऑफ sin y, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x, तो तुम तो cos x नहीं, यहाँ पर y है तो आपको y ही लिखना है। फिर उसके बाद dy by dx। ठीक है, जैसे हम लोगों ने x का किया है वैसे ही y का भी करेंगे, लास्ट में जाके dy by dx लिख देना है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया माइनस, कौन सा है ये, फिर यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो डायगोनल ये मल्टीप्लाई होकर उधर 0 हो गया, है कि नहीं? ठीक है, अब जो है dy बाई dx का टर्म्स जो है एक साथ करो और dy बाई dx जिसमें नहीं है उस टर्म्स को एक साथ लिखो।
है कि नहीं। तो उससे पहले तो सब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो क्या होता है। तो यहाँ पर ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 2x² y dy बाई dx प्लस 2xy² माइनस 2y³ dy बाई dx इक्वल्स टू, ये माइनस वाला टर्म जो है उधर लेके चले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। तो इसके साथ ये 2x³ है कि नहीं, इसके साथ ये प्लस 2yx² dy बाई dx, फिर माइनस 2xy² माइनस 2y³ dy बाई dx। ठीक है, देखो तो अब यहां पर कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, कैंसिल होता है कि नहीं, देखो तो 2x³ 2x³ कैंसिल होता है, और माइनस 2y³ dy बाई dx ये कैंसिल होता है, फिर और कुछ होता है कैंसिल, नहीं होता है। अच्छा एक काम करो, अभी dy बाई dx वाला जो टर्म्स हैं सबको एक साथ लिख लो। यहाँ पर ये एक टर्म है, लिख लो इसको, और उधर जो है एक टर्म है, इसको माइनस करके इधर लेके चले आओ, 2yx² dy बाई dx इक्वल्स टू, अब इस टर्म को उधर लेके चले जाओ, माइनस 2xy², और इधर माइनस का तो ऑलरेडी है 2xy² है कि नहीं। तो यहां पर से माइनस dy बाई dx कॉमन ले लो, माइनस भी एक कॉमन ले लो, क्या होता है 2x² प्लस 2yx², और इधर क्या होता है माइनस कॉमन लो, 2xy² प्लस 2xy², माइनस माइनस कैंसिल, सो dy बाई dx इक्वल्स टू 2xy², 2x दिस, दोनों सेम कैसे होता है, अच्छा दोनों तो सेम ही है, तो दैट मीन्स 2x² y प्लस 2x² y, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 4xy² बाई 4x² y, तो 4 4 कैंसिल, इधर y y कैंसिल, इधर x x कैंसिल, दैट मीन्स y बाई x, सो dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई x, यही तो प्रूफ लाना था, है कि नहीं। प्रूफ देखो आ गया ना, प्रूफ आ गया, प्रूफ है कि नहीं, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, if y equals to x sin a plus y, हो गया ये, उठा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ साइन y इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन y इक्वल्स टू x साइन a प्लस y, x साइन a प्लस y, then prove that dy by dx equals to, then prove that dy by dx equals to sin square a plus y by sin a, sin square a plus y by sin a, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन, शुरू करो, sin a y x sin a plus y, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो x इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो x इक्वल्स टू साइन y बाई साइन a प्लस वाई, लिख सकते हैं ना। अब देखो राइट साइड में पूरा y का एक्सप्रेशन आ गया, तो dx बाई बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विथ रेस्पेक्ट टू y,
ओके, इसलिए डी डी वाई ऑफ एक्स, मतलब ऐसे लिखना है आपको, डी डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी डी वाई ऑफ एक्स, और इधर डी डी वाई ऑफ साइन वाई साइन ए प्लस वाई। अब बोलोगे सर यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में क्यों करना है, तो मुझे तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है उसका आंसर, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अगर मैं सोल्यूशन करूंगा, यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा, और इधर जो है पूरा y का एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स हर जगह dy बाई डी एक्स एक एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि y का टर्म्स है ना, तो हर ये dy बाई डी एक्स जो है इस एक्सप्रेशन में हर जगह अंदर घुस के रहेगा, तो वो अंदर से dy बाई डी एक्स निकालना जो है, कैलकुलेशन जो है, इट्स मे बी लेंथी, इट्स मे बी कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड विथ रेस्पेक्ट टू x with respect to y differentiation. Just see what is going on. dx by dy equals to, यहां पर तो u by b हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर साइन a प्लस वाई डी डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस साइन वाई डी डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई, ठीक है नहीं। तो बस यहां पर देखो साइन ए प्लस वाई, ये डी डी वाई ऑफ साइन वाई फॉर्मूला क्या होता है, कॉस वाई, माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ साइन, दैट मीन्स कॉस ए प्लस वाई। अब ए प्लस वाई का अलग से अगर डिफरेंशिएशन करें, देखो डी डी वाई ऑफ ए प्लस वाई का क्या होता है, डी डी वाई ऑफ ए आंसर 0, डी डी वाई ऑफ वाई आंसर 1, तो नो नीड टू राइट, क्यों लिखें इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है नहीं। तो अब देखो यहां पर क्या आ गया, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला क्या किसका बनता है, साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए माइनस बी है कि नहीं, देखो तो है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये ए माइनस बी, और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, सो डी एक्स बाई डी वाई का क्या रहा है, साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, आ गया ना प्रूफ। अब उसको तुम नॉर्मली करने के लिए जाओ, नॉर्मली एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करना, तो ये प्रूफ लाना जो है छठी का दूध याद दिला देगा, है कि नहीं। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये ऐसे सॉल्यूशन प्रोसेस बनाया है, ठीक है। तो ये इजी प्रोसेस है, इजीएस्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल करने के लिए जाओगे तो ये प्रूफ लाना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आएगा आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ का वैल्यू वहां, वहां का वैल्यू वहां, वहां का वैल्यू यहाँ पुट करके 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 2 पेज हो जाएगा। यहाँ पर देखो आधा पेज में हो गया, आधा पेज भी नहीं लगता है कि नहीं, आधा पेज भी नहीं लगता है यहाँ पर। फिर लिखो, if tan inverse हो गया, if tan inverse x square minus y square, if tan inverse x square minus y square by x square plus y square equals to a, then dy by dx equals to x by y 1 minus tan a by 1 plus tan a। दैट मीन्स ये इम्प्लिसिट टाइप का जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें सीधा थिंकिंग, जो स्ट्रेट थिंकिंग, उससे सॉल्यूशंस, ये प्रूफ, ये सब नहीं आता है, आपको थोड़ा ट्रैक से हटके सोचना पड़ेगा, है कि नहीं।
यहाँ पर नॉर्मली देखो, यहाँ पर प्रूफ देखो और गिवन कंडीशन देखो। प्रूफ में देखो ये 10A, 10A, ये 10A, ये सब कहां से आ गया भाई 10A? कुछ गिवन कंडीशन में 10A है क्या? नहीं है, बट हम लोग ला सकते हैं। कैसे? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स उधर लेके चले जाओ, 10A बाई तो 1 है कि नहीं? अब आप लोग जानते कि नहीं मुझे पता नहीं है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस, दैट मीन्स कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस क्या होता है? लिख लो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये प्रोसेस क्या होता है? अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन है x बाई वाई, तो उसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा? x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस। तो यहां पर भी इक्वल्स टू साइन के बोथ साइड में हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस यूज करेंगे। दैट इज, ये है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पर भी सेम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब बोलोगे सर हम लोगों ने ये क्यों किया? प्रूफ में देखो, ये 1 प्लस 10A बाई 1 माइनस 10A, ये सब एक्सप्रेशन कहां से लाएंगे? है कि नहीं? आ गया ना? जब भी याद रखना, मैं शॉर्टकट एक ट्रिक बोल देता हूं कि जब भी आप लोगों को ऐसा प्रूफ पार्ट में दिखाई दे 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, एम प्लस एन बाई एम माइनस एन, 1 प्लस 10A बाई 1 माइनस 10A, इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर, दैट मीन सेम एक्सप्रेशन ही है, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन प्रूफ पार्ट में दिखाई दे, तब आप लोगों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। दैट मीन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये थिंकिंग दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर किसी तरह तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किसी न किसी जगह तो आपको यूज करना ही है कि नहीं? सो आ गया। तो यहाँ पर देखो, वाई स्क्वायर कैंसिल और इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स क्या होगा? 2x स्क्वायर बाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 10A बाई, उधर 1 माइनस 10A लिख देंगे और सामने एक माइनस साइन चलेगा, या माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस 10A बाई 1 माइनस 10A, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्या निकालना है मुझे? dy बाई dx। अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर होगा डी dx ऑफ वाई स्क्वायर 1 प्लस 10A बाई 1 माइनस 10A। तो डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या? ट्वाइस एक्स। डी dx ऑफ वाई स्क्वायर मीन्स ट्वाइस वाई, है कि नहीं? और y के लिए तो dy बाई dx तो एक रहेगा, फिर 1 प्लस 10A बाई 1 माइनस 10A, बोथ साइड देखो 2 कैंसिल भी हो गया ना, 2 कैंसिल। फिर यहां से dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा? dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा बोलो तो? यहां से ऊपर चले जाओ। सो dy बाई dx इक्वल्स टू x बाई y 1 माइनस 10A बाई 1 प्लस 10A, प्रूव्ड। ये सब जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, ओके? ये सब 100 स्टार क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अभी कर रहे हैं। देखो, if xy into log x plus y equals to 1, if xy log x plus y, if ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, if xy log x plus y equals to 1, then prove that
प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू, क्या करना है, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यह आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, देखो स्टार्ट कर दो। गिवन एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो बोथ साइड जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन जो है कर लेते हैं। एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा। यू भी, ये यू ये भी, सो एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई प्लस भी, इट मीन्स लॉग एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब एक्स के जगह यहाँ पर ये है तो आपको 1 बाई एक्स की जगह ये लिखना है। अब एक्स की जगह ये है, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई भी तो निकाल के दिखाना है। एक्सप्रेशन आ जाएगा ना यहाँ पर, लॉग का एक्सप्रेशन फिर एक्स प्लस वाई का एक्सप्रेशन। कितना एक्सप्रेशन है, लॉग और एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स पहले लॉग का होगा 1 बाई दिस, फिर इस एक्सप्रेशन का होगा, फिर यहाँ पर लॉग एक्स प्लस वाई और यहाँ पर यू भी, फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स इंटू डी डी एक्स, यू इंटू डी डी एक्स ऑफ भी प्लस भी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, तर 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1, डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है। ठीक है, अब जितना सारा dy बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन है सबको एक साथ लिख लो। ठीक है, जैसे एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां से एक मिला, यहां से ये मिलेगा एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी जो टर्म है उधर लेके चल जाओ, माइनस वाई लॉग एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने dy बाई डी एक्स का जितना सारा टर्म्स है सबको लेफ्ट साइड में लिख लिया, और बाकी जो टर्म्स हैं उसको राइट साइड में लेके चला गया, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका वैल्यू मुझे निकालना है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले, देखो dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, है कि नहीं, और इक्वल्स टू माइनस अगर कॉमन ले y लॉग एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रूफ का जो पार्ट है, प्रूफ पार्ट में देखो तो किसी भी जगह प्रूफ में लॉग एक्सप्रेशन जो है बोध आपको दिखाई दे रहा है। प्रूफ जो प्रूफ करना है, जो एक्सप्रेशन है ना, अब उस प्रूफ पार्ट में लॉग रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन है प्रूफ में, देखो तो प्रूफ दैट करके डी वाई बाई डी एक्स लिख के लिखा हुआ है ना, उसमें लॉग एक्सप्रेशन कुछ है नहीं, बट यहां पर देखो एक लॉग एक्सप्रेशन तो ये और ये आ गया, तो ये लॉग एक्सप्रेशन को यहां से मुझे एक्सक्लूड करना है। ओके, सो डू यू हैव एनी लिंक और एनीथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सॉल्यूशन, by which this log x plus y term can be excluded from this last expression? Okay,
कुछ है क्या आपके पास जिससे ये log x प्लस वाई एक्सप्रेशन को भगा सकते हैं यहां से, दैट मींस एक्सक्लूड कर सकते हैं? क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाके देखो, यहां से log x प्लस वाई का वैल्यू अगर निकाले, उसमें क्या था, एक्स वाई log x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, दैट मीन्स log x प्लस वाई क्या होगा, 1 बाई एक्स वाई होगा ना। तो दैट मीन्स हर जगह तुम एक काम कर सकते हो, log x प्लस वाई के जगह में x इंटू 1 बाई एक्स वाई, वहां पर भी y इंटू 1 बाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई कर सकते हैं ना। x x कैंसिल, y y कैंसिल, बस dy बाई dx, यहां से अगर मैं एलसीएम करूं y इंटू एक्स प्लस वाई, तो इधर आ जाएगा x वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर एलसीएम करेंगे, माइनस तो एक है ही बाहर, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, नीचे नीचे एक्स वाई कैंसिल, तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डायगोनली अगर मैं ले लूं माइनस तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई, ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा आएगा। ये नीचे वाला एक्स, ये नीचे वाला एक्स कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला एक्स देखो, यही तो प्रूफ करना था शायद, यही तो प्रूफ करना था, है कि नहीं, है कि नहीं। एक माइनस साइन भी है, माइनस साइन को ऐड करो, क्वेश्चन को करेक्शन करो, क्वेश्चन के लिए माइनस साइन यहां पर होगा, क्वेश्चन को करेक्शन करो, माइनस साइन होगा एक सामने प्रूफ पार्ट में, प्रूफ दैट करके dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ दिस, ये मिस हो गया, माइनस मिस हो गया, माइनस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस के लिए कम होता है ये सब क्वेश्चंस, बट बोर्ड के लिए तो एकदम श्योर ये सब क्वेश्चंस ही आएगा। अगर इम्प्लिसिट इक्वेशन से अगर क्वेश्चन दे, जो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो वहां से ही आप लोगों को मिलेगा, कंफर्म। ओके, सो इन दिस वीडियो just that's enough. Almost 8 or 9 questions were solved, including the concepts also. Okay, so very important lecture. Just you have to see the lecture properly and just related to these solutions, this type of solutions you should solve. You should practice this type of questions from NCERT, from R.D. Sharma, from R.S. Agarwal, from the different books. Okay, so I think as a 12th student, don't be confined within one book. That means you have to extend your thinking. You have to extend your knowledge. Okay, that means try to actually extend your knowledge more and more, by which you can face various questions from the various sources, and whatever the question it is, just you can solve that type of questions as well. Okay, so just you have to try to extend your knowledge. Okay, so आप लोग को अगर लेक्चर्स ये पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर करना है, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो जस्ट टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ईद to each and every students and my subscribers, my viewers. Okay, so just till then stay safe. Okay, bye and Jai Hind.